Okay, so good morning, everyone. My name is Siddhi, and I will be hosting this debate event for PISA. So, since all of you are here on a Sunday, and most of you have already taken part in this event in a way, so I'll just recap all the rules. Like, you can speak in any language you want, either Hindi or English. And since we have two teams, we have four people for, and other four people will be against. Now, also the topic which we have is, does the internet make us more productive? Okay, so this is the topic which we have, and you have to speak on this. The four people have to speak on the part where they say that the internet is making them more productive, and how it will make them more efficient in anything that they have to do. And the against people, your prompt is that you have to speak that internet is not making you as productive as it should. Then you can give many examples on that topic itself, like how you are not able to uh, do that, any work which you're assigned because of the internet, it's not happening. So that is what you have to speak upon. I hope the topics for and against are clear for you. Okay, so now how this goes for us is, there are three roles, and leader, you have to support, and a whip. And I'm sure in the team meetings, you have chosen which role you want to, which part you want to take, and I hope all that is clear. So how this will go is, first the four team leader has to speak, right? So, Sanjay, you can introduce for topic leader. Sanjay is a volunteer, right? And he will be helping us throughout. So, yes, go ahead. Uh, uh, Hello everyone. Uh, good, good morning. So I am Sanjay, and I am the volunteer in the teacher debate event. So just give me 1 minute. So the leader from the four team is Manohar Dhakad. So Manohar Dhakad, please introduce yourself. Okay, so myself Manohar Dhated, and I am from Chirayu Medical College and Hospital Bhopal. Currently, I am pursuing MBBS, and I joined TISA in February 2022. Thank you so much. Yeah. So and the support from the four team is Madhav Maheshwari. Madhav Maheshwari, please introduce yourself. Okay. Firstly, good morning. Firstly, good morning, everyone. Myself, Madhav Maswari. Um, I am from Bhopal, Madhya Pradesh. Um, my age is 17. Currently, uh, Currently, I am a 12th graduate student, and and my and my and my aim is to become a chartered accountant. That's all. Yeah. th- Thank you, Madhavji. And the second support from the four team is Harsh Kumar Gupta. So, Yeah, so Harsh, good morning. Yes, hello. Yeah, so good morning, yes, everyone. My name is Harsh Kumar Gupta, and I have joined TISA since. Okay.
I joined. It's been 1 year. I have joined TISA. So yes, thank you. Yeah, yeah, Harzi, I think it is a little bit short introduction. Yeah, but yeah, Yes. that's okay. So the whip from the fourth team is Rajat Dhakad. So Rajat Dhakad, please introduce yourself. हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नो, मेरा नाम रजत धाकड़ है और बेसिकली मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ और अभी मैं जयपुर में रहता हूँ और अभी मैं अपनी बीए कर रहा हूँ और मैं तीसा से लास्ट 8 मंथ से जुड़ा हुआ हूँ। सो थैंक यू। Yeah, so Siddhi, I think the intro from the 4 team has done. So now we can go with the intro uh, from the against team. Yeah, Thank so you. thank you everybody for introducing yourself. So we'll go ahead with the event. Now, few things before that. Each participant has 5 minutes to speak on their topic, and it will be alternate. Like first, all for leader will speak, then against leader will speak. So in that way, and you may take as long as you want to share your views, and I would suggest to go slowly and give examples for each point so that it's more clear to the audience as well. We have a few people in the audience, I think. Okay, so let's go ahead. For leader, Sanjay, you can go ahead with that. For leader, we So, have, yeah. so the leader from the 4 team is Manoj Dhakad. So Manoj Dhakad. Now the stage is yours. You are uh, uh, you are on mute. Can you unmute yourself, Manoj Dhakad? Now, am I audible? Okay, so thank you so much for inviting. So, today's topic of debating is how does internet make us more productive? So, I have to speak for the topic. So, my first point is internet gives us a flawless communication because आजकल क्या होता है कि जैसे बी बी ना इंटरनेट के भी हम भले कितने भी दूर हैं कितने भी डिस्टेंस पर हैं अ, चाहे देश में हो या फिर विदेश में है लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो इंटरनेट के माध्यम से इतना अच्छा और इतना सुगम हो गया है कि अपन बात भी कर पाते हैं एक दूसरे को देख भी पाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद इंटरनेट की वजह से हुआ है नहीं तो इससे टाइम भी बचता है टाइम में मैनेजमेंट भी अपन अच्छे से कर पाते हैं नहीं तो अगर इंटरनेट नहीं होता तो अपन कोई काम होता तो अपन जैसे इतनी दूर जाकर वो काम कर पाते लेकिन आजकल के इंटरनेट के माध्यम से जो कम्युनिकेशन है वो काफी बेहतर हुआ है ये मेरा पहला पॉइंट था और मेरा दूसरा पॉइंट है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो काफी सुदृढ़ हुई है इस इंटरनेट के माध्यम से खासकर देखा जाए तो जब पेंडेमिक था जब कोविड-19 2 साल तक था स्पेशली तब इंटरनेट ने ऑनलाइन एजुकेशन को ज्यादा अच्छे तौर पर सामने लाया और आजकल भी कितने ही स्कूल कितने ही कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग हो रही है जहाँ पर इससे टाइम भी बच रहा है मान लो कोई पर्सन भोपाल रह रहा है उसको अगर ऑनलाइन एजुकेशन ना मिले वो ऑफलाइन एजुकेशन के लिए कहीं बाहर दूसरे
दूसरे शहर में जा रहा है तो उससे टाइम काफी ज्यादा जाएगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन कई सारे एप्लीकेशन हैं, उनके द्वारा आप अच्छे से अच्छी एजुकेशन घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इससे टाइम मैनेजमेंट भी होगा और ज्यादा जैसा कि आज टॉपिक है तो इससे अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज्यादा बाहर आएंगी। और उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि जो इंटरनेट की वजह से आजकल ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो काफी काफी फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि अगर कोई बंदा ऑफिस में बैठा है और उसका वर्किंग डे चल रहा है, फिर भी वो अपनी मनपसंद वस्तु, चाहे वो नहाने के साबुन से लेकर कोई बाइक कोई कार, मतलब इनके बीच की जो भी वस्तुएं मनपसंद वस्तुएं, वो एक क्लिक के द्वारा ऑर्डर कर सकता है, वो अपने घर आ सकती है। ये बिना इंटरनेट के संभव ही नहीं था। तो इस इस क्षेत्र में भी इंटरनेट का काफी रोल रहा और इससे भी हमारी प्रोडक्टिविटी काफी बेहतर हुई है। अपन फोन से या फिर ऐप से रिक्शा बुक कर सकते हैं घर बैठे, और फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो इंटरनेट के माध्यम से काफी बढ़ चढ़ के सामने आई है। और मेरा एक और पॉइंट ये भी है कि इंटरनेट में अपन सोच भी नहीं सकते उतनी इंफॉर्मेशन है, और आजकल तो एआई का जमाना चालू हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं। तो उसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन है उसका उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है इंफॉर्मेशन की। जितना अपन चाहें उतना गूगल हो गया, याहू हो गया, ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से अपन छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन भी गेन कर सकते हैं। तो ये काफी प्रोडक्टिविटी ब प्रोडक्टिविटी बढ़ बढ़ ब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाली एक फायदेमंद चीज है, और इससे काफी फायदा मिलेगा। और मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि बात करते हैं कि अपन आज जूम मीटिंग होस्ट या फिर जूम मीटिंग रख पा रहे हैं, डिबेट रख पा रहे हैं, पीसा एक ग्रुप है, टेलीग्राम एक ग्रुप है, स्कैमरिंग लोगों के लिए इतना हेल्पफुल है, कम्युनिकेशन हो रहा है। ये सारी चीजें, सारा माध्यम इंटरनेट की वजह से ये नहीं होता तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, और काफी मतलब आज शॉर्ट में ये बताया जाए कि घंटों का काम आज सेकंडों में हो रहा है। और ये जो प्रोडक्टिविटी है इंटरनेट की, ये आने वाले समय में धीरे धीरे और बढ़ती जाएंगी। मुझे फोर्थ टॉपिक बोलना था, इसलिए मैंने वैसे तो बहुत सारे एडवांटेजेस होती हैं, लेकिन टाइम की लिमिट है। तो मैंने जो जो पॉइंट्स मैं बोलना चाहता था वो मैंने बोल दिया। हालांकि इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन वो अगेन टॉपिक वाले ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। तो इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Thank you so much, Manohar ji, for sharing your views. So हमारे four leader बहुत strongly आए हैं. He gave us many advantages actually for internet and how we use it every day. So I'll recap it. उन्होंने क्या क्या बोला. तो उन्होंने पहली बात तो बताई कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसकी वजह से स्टूडेंट्स को कितनी हेल्प हो रही है, एंड अभी पहले ऑफलाइन होता था, अभी बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है. आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, कोई भी टॉपिक सीखना रहेगा तो आपको. देन फोन कॉल्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू इंटरनेट फोन कॉल, इंटरनेशनल फोन कॉल्स फ्री हो जाता है इसकी वजह से. एंड बहुत सारे लाइक
स्काइप हो गया, ऑनलाइन मीटिंग्स रख सकते हो, जूम पे जो हम अभी मीटिंग ये कर रहे हैं वो इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा लाइक ऑफिस मीटिंग्स वो ज्यादा इजीली हो जाता है अगर लोग एक साथ ना रहते हो, दूर दूर रहते हो तो। अभी then you can order online from Amazon, from Flipkart, anything you want, and बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ऑब्वियसली बहुत सारे एप्स है जो आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे पूरा जो एआई का है, यू कैन हैव इंफॉर्मेशन एनीथिंग यू वांट इजीली, सो इसकी वजह से बहुत सारी हेल्प हो चुकी है, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स पॉइंट्स ढूंढे आपने, तो थैंक यू सो मच। ओके, सो फ्रॉम अगेंस्ट टीम I think we have Ankit, right? Ankit Singla. Ankit, are you Hello. there? Yes, Yeah, yes. yeah. Hello. Yeah, so you will be against the against team, right? Yeah, so you can go ahead, introduce yourself, and then you can go ahead. yeah. So hello everyone. Uh, I am Ankit Singla, and I am from Rohtak, Haryana. Uh, I am in CA final right now, and या तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मेरी टीम से अभी और कोई पार्टिसिपेंट यहाँ पे नहीं है, ओनली मैं ही हूँ, और मैंने भी एज ए विप मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो अभी मतलब कोई क्या प्रोसीजर है, क्योंकि मेरी टीम से अभी और कोई नहीं है, ओनली मैं हूँ। See, we can even have the audience if they are interested against team, because nobody they were not able to attend in this meeting. So you can raise your hands if you want to speak against as well. Okay. Yeah. Now you can share your points here. ओके, सो मैं फिर एज ए लीडर भी बोलता हूँ, ठीक है? तो मैं एज तो मैं फो तो मैं एज ए अगेंस्ट के टॉपिक पे के फेवर में बोलूंगा। तो जैसे कि मनोहर जी ने बताया, तो जैसे कि मनोहर जी ने बताया कि इंटरनेट मेकर्स मोर प्रोडक्टिव, उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में भी बताया, और उन्होंने अलग अलग टूल्स के बारे में भी बताया। तो मैं उसके रिगार्डिंग एक चीज बोलना चाहूंगा। नंबर 1 पॉइंट, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है। जैसे अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें हर एक सर्चेस के मल्टीपल रिजल्ट्स मिलते हैं, जिससे क्या होता है कि हम एक तो इंफॉर्मेशन को फिल्टर नहीं कर पाते कि क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट नहीं है। और दूसरी बात, बहुत बार क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी आती है जो हमारे यूजफुल नहीं है, जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो नंबर 1 इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और इसी से ही हम अपने दूसरे पॉइंट पे भी जाएंगे, प्रोकास्टिनेशन। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब सपोज मैंने अपने लैपटॉप पे कुछ भी सर्च किया, तो वहां से कुछ भी मेरे को नोटिफिकेशन आई, लेट्स सपोज मेरे को व्हाट्सएप की आ गई या इंस्टाग्राम की, तो वहां से मैं प्रोकास्टिनेट बहुत इजीली कर सकता हूँ। जैसे मैं एकदम से उस पर स्विच हो जाऊंगा, और मैं एकदम से अपने जो मेन मेरा काम है वो उससे उससे हटकर मैं किसी और चीज पे चला जाऊंगा। तो नंबर 2 क्या है कि हम प्रोकास्टिनेशन भी बहुत इजीली कर पाते हैं, मतलब वो बहुत ही इजी वे में, हमको पता भी नहीं चलता और हमारा माइंड वहां पे डाइवर्ट हो जाता है। तो और या और मैं बोलना चाहूंगा कि लैक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे क्या है, इसमें ना स्ट्रक्चर की कमी होती है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक सेकेंड।
या जैसे कि क्या होता है, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन की ही बात मैं कर रहा हूँ, जैसे कि जूम मीटिंग होती है, तो उसमें बहुत बार क्या होता है कि मतलब पार्टिसिपेंट्स बीच बीच में आ जाते हैं और वो अच्छे से मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं मतलब करते, और मतलब वो अच्छे से इफेक्टिवली पार्ट नहीं ले पाते, जिसकी वजह से थोड़ा सा उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, मेरी तरफ से मेनली 3 पॉइंट थे। एक तो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, हम कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें खुद से फिल्टर करना पड़ता है। एंड द नंबर 2 इज प्रोकास्टिनेशन, हम बहुत ही इजिली प्रोकास्टिनेट कर पाते हैं, हम इजिली डाइवर्ट हो जाते हैं। एंड द नंबर 3 इज लैक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी मतलब मतलब अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है वो चीज, मतलब पूरा। सो या थैंक यू। Thank you so much, Ankit, for sharing your views. I think आपका स्पीच बहुत स्ट्रक्चर्ड था इससे comparatively to internet. Like you did say that there's a lot of information, बहुत ज्यादा information है, और उसको मतलब हमें जो रिक्वायर्ड है वो इजीली आएगा नहीं, हमें ढूंढना होगा वो सब चीज। पूरा वेब पेज सपोज ढूंढ लिया तो पूरे वेब पेज में जो इम्पोर्टेंट है वो मिलेगा नहीं हमें आसानी से। And there's no filter to it, like there is so much information which we do not want. और अगर होता है ना, एक चीज देख ली और उसके ऊपर हम और कितना कुछ ढूंढते बैठेंगे, वो पता है ना, वो चेन होता है, सर्च चेन। एक टॉपिक ढूंढा, फिर कोई और चीज ढूंढा उसके ऊपर, फिर कुछ और ढूंढा। तो इसकी वजह से आई थिंक प्रोडक्टिविटी बहुत लाइक वेस्ट हो जाती है वैसे। And like when you are in online meetings, you don't interact as much, आप बोलते नहीं है इतना, क्योंकि it's like सब ऑफ रखा है आपने, म्यूट भी किया है अपने अपने आप को। इवन इफ somebody asks you आप होंगे कि नहीं मीटिंग में, वो भी एक बात है। मतलब मैं ऐसे मीटिंग रखती थी और यूट्यूब देखती थी, तो पता नहीं वो बहुत लोग करते होंगे कि नहीं। तो इसीलिए आई थिंक distractions बहुत ज्यादा है। In a way, I want again this topic also to share how social media can impact you आगे से। Okay, so thank you so much, Ankit, for sharing for your views and for being here in the meeting also. Okay, so for team, who do we have? Sanjay next. So thank you, Siddhi, and thank you, Ankit, for sharing your views. And one point that Ankit was told, that is the procrastination. Yeah, I think internet इंटरनेट डेवलप हुआ था हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, बट जैसा अंकित ने कहा है कि इससे प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी टाइम डिक्रीज होती है। और प्रोकास्टिनेशन, ये मेरा पर्सनल मैंने फील किया है कि हाँ, सम टाइम हम इसकी वजह से काफ़ी प्रोकास्टिनेट करते हैं। सो या दैट्स वैलिड पॉइंट। सो फ्रॉम द just 1 minute. So from the 14 now this and the support is Madhav Maheshwari. So Madhav Maheshwari, now you can go with your speech. Okay. Okay. So I want to say that as the Ankit sir said that um as the Ankit sir said that internet um internet has a that as the Ankit sir said that internet is overloaded. Um, I'm not I'm not I'm not a totally I'm not totally agree with I'm not totally agree with that point, because internet has a because because if you want um because if you want to because if you want
specific, because if you want a specific type of result, firstly, firstly you should type a firstly you should type a specific keyword keyword for it. Um, then 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 and then you can got a specific then you got a then you can got a specific result that you want. So firstly you need to learn what type of keyword I should type to get a specific type of to get a to get an to get to get a specific to get a specific type of re- result that you want to have, that that you are searching for. Um, uh, so 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 for example, you have searched that you have searched that let's say um uh, suppose you have searched that top 10 um uh, top 10 top top 10 biggest countries in the world. So um for this you have to type a specific keyword to get your specific result, so that um what type means that if you are searching for that wo- wo- world's world's largest countries by its land, or world's largest countries by its population. So firstly you have to type a specific word what you want, so you can your so you can get your specific result. Um, as the as the as the Ankit sir also said that the internet internet leads to pro, leads to procrastination leads to procrastination. I am I I am also agree I am also agree that I am also agree with that, but 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 from the but from the point of view of but from the point of view of mine, I would like to say that 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 if you know that that if you know that if you know that you are doing this task for your for your for your purpose, then they, then 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 uh, so then it's not a procrastination. If the uh, if the work is if the work is adding your if the work is adding in your if the work is if the work is adding some value in your mind, then then it's not a procrastination. You can't say that it's a procrastination. But 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 if you're not gaining something useful to your work, then you can say that it's a procrastination. Internet's a, internet's a very vast. You can't search. You can't. You can't. You can't imagine. You can't. You can't im, imagine how far you can go with that with the with the right use of internet. Um, there there nowadays there are many AI based tools that will that will lead to that will
lead to increase your that will lead to increase your productivity. Firstly, firstly, I give firstly I will give a example of chat. I will give a example of chat GPT, um, which is which is launched by which is launched by OpenAI, which is launched by Open AI company. It's it was it was launched in it was launched in uh, um it was launched in December of 2022. Um, by this it gains uh, it gains immense popularity. It gains immense popularity because it help it helps us to increase our productivity. It can create anything. It can create anything for you, but for this you have to type a specific you have to type a you have to need you have need a type you have to type a specific prompt to get your um answer. So yeah, I'm done. Thank you so much, Madhav, for sharing your views. So, I think whatever you said, it was an example where you listened to against also, and then unke upar you shared your views. So that is something which is never there in, as far as I've seen in these debates. So I think on the spot you said everything. So I think that was very, very, very good actually. So you said that like whenever we want to search anything, we should be sure of the keyword we want to add in. If we don't add that, then the search results are not something which we want. So we need to be careful of that. And you also said that if we search about something which is useful to us, obviously we will not procrastinate about it. Like if you search something else which you should not, then obviously it's of no use to us. And at the end you said so much about AI. So Sanjay, do you want to review AI ka ye, because you know more about it? Yeah, yes, Siddhi. Means and the that thing that thing the Madhav Maestri told about AI. I think in the internet the use of AI is lot. Means इंटरनेट में एआई का काफ़ी यूज़ है और एआई ने मीन्स काफ़ी चीज़ों को सिंपल भी किया है और मीन्स एआई का डिसएडवांटेज भी है एडवांटेज भी है सो एआई या इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स अभी जस्ट इंस्टेंट मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स नहीं है जो मैं बोल सकूँ बट या एआई का काफ़ी इम्पोर्टेंस है इंटरनेट में. Yeah, like for AI, like he like said an example about Chat GPT, right? Where you say, I want an essay for ye topic, तो वो आ जाएगा. Like everything will be there up to the point which you want. It depends on what you search for, and in that way, it is very helpful. I've seen it. It's very helpful in reports. It's very helpful maybe in any work, office work you want to do. Even for students, I think it's the most useful for students at this point. So yeah, so thank you so much. Yeah, for team. Then against, is there anybody in the audience who wants to go for against team? Samir, do Yes, you want to? Yeah, yeah. I am going to. But I will yeah, try it. Okay, but I am not prepared for it. I have just see, you joined can, TISA. yeah, I know, you I will can share try it. anything. My best.
Okay, yes. First, please Yes, first of all, introduce yourself also. Yeah. yeah, okay. First of all, I will introduce myself. My name is Hamip Shinde. I am from Maharashtra, Sindhudurg, from a small town named Hudar. Um so I am now 18 years old, and I am going to join my engineering college from the next month. So, talking about the point, first of all, I have experienced it since I have done my J prep from the last 2 years online. So there are pros as well as cons of internet. While we are gaining information from internet, when we are trying to learn it, there are various distractions that make us uh, uh, distract very well because of such as Instagram. For example, when I was attending my online lectures, and when it get end, I directly moved towards Instagram, scrolling the reels. It happened many times. So this is one of the disadvantage of internet. Um and there are and the second point, as it was covered already, which is there is a lot of more information which is not needed, but the only and there is over access of information on the internet. Also, there are the chances, instead of very security of data exchange, of transfer in it is very well, there are chances that the people can catch our data. There can be many malpractices over the internet. Um, then, as we live in India, we have our family values that when there is an occasion, we gather to we get gather. But due to internet, it is happening less because of video calls and the earlier values that my parents used to tell me that they used to send post messages uh, to uh, to, uh, to their family members, to their relatives, and this is happening less. And because of that, the very young children of 13, 14 years, they are not getting interest in the physical activities, playing, and they are more tending towards playing games, video games, due to this internet. And uh, and we also friends. Uh, Previously, in our childhood, we used to be very eager to go in school, to meet our friends, to talk to them, to play on the ground. But nowadays, the online games, they are gathering to online. They are playing that online games. So something that physical activity is also being reduced in the young children. So this is the disadvantage of internet. Uh, and other mm, and I am not getting more points. So can I stop here? Yeah. Yeah, sure. I can try again if I get Yeah, sure. few Again, if points to you speak. have a few points at the end, because you are now you have to play three roles now for games. That is why we need more points. Yes. Even Ankit, you may share more points if you have them later on as well. So yes, you added on to a lot to what Ankit had already said, and you added on more interesting points as well. First, I thought was data privacy, which is not there on the internet. You share a lot of your information. Um, some things are stored in their bases already, and something they reuse, but we don't know if it's exploited, if information is used for some other reasons. So over there, internet is a very unsafe place if we think about that. And so that point was uh,
valid as well. But the point where you said that children, they, they prefer not going out and playing on their phones or playing video games all through the day, because now this is like a trend where you can stream everything you play, and then you get views, and many people are into this thing only. Many want to become social media influencers, so they are sticking to the internet the whole day long. And I'm not saying that it's not an advantage. Many people are being more popular in a way, but still I think the over usage of internet is a lot, because once you start using it for too long, you may not stop, and it may hamper your health. Like, you may not go out for exercise, and it hampers your health a lot. So in that way, I think, yeah, your points were also on the spot. You spoke so much, so I think that is really good as well. Yeah. So thank you so much, Sameer. Thank you for being an audience also. Yeah. So the next, Sanjay, who do we have in 4 team? Thank you, Siddhi, and thank you, Sandeep Sinde, for speaking for the against him. And the one point that you told, that data privacy means, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि डेटा प्राइवेसी है ही नहीं. Means there are some source on which we can trust about our data, and there are some source that can leak our data. So means the data privacy is like about 50-60. means इंटरनेट पर डेटा प्राइवेसी है भी है, और सम सोर्सेज हैं जो काफ़ी अच्छी तरह से डेटा को लीक करते हैं. सो both things are there in the internet. Okay, and the most important that you told, that the physical activity, yeah, means internet की वजह से काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी कम हुई हैं. मीन्स मोस्टली लोग अपने फ़ोन्स में और लैपटॉप में ही बिजी रहते हैं, जिससे फिजिकल हेल्थ भी ख़राब होती है, और एंड सोशल इंटरेक्शन भी कम होता है, जिससे हमारी जो सोशल पर्सनैलिटी होती है वो डेवलप नहीं हो पाती है. या दैट्स ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था. ओके, सो थैंक यू सिंधे जी. एंड द जस्ट so yeah, so from the 4 team, the next support is Harsh Kumar Gupta. So Harsh Kumar Gupta, now the stage is yours. You can. So good morning everyone. So जो पहले तो जो हमारा टॉपिक है, डज द इंटरनेट मेक अस मोर प्रोडक्टिव. तो हम पहले प्रोडक्टिविटी का मतलब समझ लेते हैं कि प्रोडक्टिविटी वो होती है कि इज द अमाउंट ऑफ आउटपुट यू गेट, जो हमें आउटपुट मिलता है बाय इनपुट जो हम अपना लगाते हैं. और अगर आउटपुट जो हमने इनपुट द्वारा हमें मिला, अगर वो ज्यादा होता है तो उससे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हुई है. तो अभी अपना मोबिलिटी में अगर पॉइंट लूँ फॉर सपोर्टिंग द प्रोडक्टिविटी इंटरनेट, तो हम अगर बाय चांस समझो हमें अभी जैसे हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी हमें कहीं पे जाके बैठ के मीटिंग करने की अपना जरूरत नहीं है, हम ऑनलाइन के द्वारा भी कर सकते हैं. और जो सेकंड है इंस्पिरेशन, मेरा पॉइंट है कि अभी बहुत से लोगों को डिप्रेशन आता है, बहुत से लोग को नेगेटिव थिंकिंग होता है, तो वो उनको किसी प्रोग्राम में जाना पड़ता है, मतलब इससे बाहर आने के लिए, या कंसल्टेशन. पर आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे अच्छे पर्सनैलिटीज है यूट्यूब पे और बाकी जगह, जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमारे लाइफ कोच बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल सदगुरु, श्रीला प्रभुपाद एंड संदीप महेश्वरी. So these people help us
फॉर इंस्पायरिंग, और बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन उनके फील्ड इंडस्ट्री में से भी अपना मिल जाते हैं, और ये सब चीजें इंस्पिरेशन वाले पॉइंट में हेल्प करती है उनके लिए। तो मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो है नेटवर्किंग। अभी जैसे आफ्टर मतलब अगर जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके बाद अगर उनको जॉब्स जॉब्स चाहिए तो उन्हें तो वो जो हमारी एप्लीकेशन है अपना लिंक्डइन, तो वहां पे भी वो जाके अप्लाई कर सकते हैं, जिससे उनकी मेहनत बच जाएगी। बहुत सी जगह जो वो लोग जाते हैं जॉब्स के लिए तो उनका वो मेहनत बच जाएगा बाय इंटरनेट। सो द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी एप्लीकेशन है जो हमें हमारी लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे हम और ऑर्गेनाइज वे में बना सकते हैं। तो वो इंटरनेट हमें उस चीज के लिए भी हेल्प करता है। हमें ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, विच इज ऑल्सो कम इन मोबिलिटी पॉइंट। तो एक ये है। और एंटरटेनमेंट भी बहुत मस्त चीज है आज के टाइम पे, जो हमें इंटरनेट हेल्प करती है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया और अलग अलग एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स हो गए जो हमें एंटरटेन करते हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि इंटरनेट आज के टाइम पे भी जब लोग अपने काम से अपना घर पे आते तो उनको एंटरटेनमेंट के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता, उन वो घर पे भी बैठ के एंटरटेन हो सकते हैं थ्रू इंटरनेट। सो दिस विल हेल्प देयर रिसोर्सेज to to use it optimally. And second is remote work. बहुत आज के टाइम पे जो नया ट्रेंड चला है काम काम करने का, कि जहाँ वो रहते हैं वो वहीं काम कर सकते हैं, उन्हें कहीं ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं। जो स्टार्टअप्स को भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इनिशियली उनके पास उतना फंड्स नहीं होता है, तो वो लोग जहाँ पे है वो लोग वहीं पे रह के लैपटॉप से काम कर सकते हैं, अगर उनका जो कोर गोल है वो ऑनलाइन ही अचीव हो रहा है। तो एक ये भी मस्त चीज है। सेकंड, कोलैबोरेशन। हम ऑनलाइन भी कोलैबोरेट कर सकते हैं हमारे मीटिंग्स के लिए, हमारे किसी जैसे कि कोई अपना गोल हो गया तो उस गोल से अपना रिलेटेड कोई अगर अवेलेबल है इंटरनेट पे किसी वेबसाइट पे, तो हम ऐसे भी कोलैबोरेट कर सकते हैं किसी और से भी। तो और वो हमें और इंटरनेट हमारा टाइम बहुत सेव करता है, ये हमें मानना पड़ेगा। जैसे कि वही मीटिंग हो गया या अदर एक्टिविटीज हो गए, कोलैबोरेशंस। एंड सेकंड इज रिप्लाई। इनिशियली पहले के टाइम पे ईमेल्स जब आते थे तो हमें उन्हें रिप्लाई करने के लिए भी बहुत टाइम लगता था, 1 से 2 दिन हमें लगते थे अगर हम ट्रेडिशनली बात करें। लेकिन आज के टाइम पे किसी भी चीज का हम रिप्लाई अपना जल्दी कर सकते हैं थ्रू ईमेल, या हम व्हाट्सएप ले ले, तो इससे हमारा कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फास्ट हो जाता है। और सेकंड इज मार्केटिंग आज के टाइम पे कॉमर्स के लिए भी इंटरनेट बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। पहले के टाइम पे जो हमारा कांटेक्ट मीडिया था पब्लिक के लिए, वो पहले न्यूज़पेपर, टेलीविजन, लेकिन आज के टाइम पे सब लोग इंटरनेट पे शिफ्ट हो गए। तो आज ज्यादा खर्चा किसी और मीडिया पे करने से अच्छा ये मीडिया सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। और आज के टाइम में ज्यादा काम इंटरनेट पे ही होता है, और मार्केटिंग के लिए भी ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सेकंड इज क्लाउड जो हमें चीजें स्टोर करनी होती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है, तो हम अगर किसी कंप्यूटर में स्टोर करके रखेंगे तो शायद उसका हार्ड डिस्क अपना खराब हो जाए या फिर उसमें कोई इश्यू आ जाए। लेकिन अगर क्लाउड हो तो हम उससे कहीं कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल हो गया या फिर कोई और डिवाइस होगा, तो एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान है, जल्दी हो सकती है। और हमारे इंपॉर्टेंट फाइल्स हम कभी भी यूज कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं या उसे एडिट भी कर सकते हैं। और जो हमारा अगेंस्ट में, जैसे हमारे अंकित भाई ने बोला कि जो इंटरनेट पे अगर कुछ सर्च होता है तो उसके मल्टीपल अपना रिजल्ट आते हैं। तो हमारे माधव भाई ने जैसा एग्जांपल दिया चैट जीपीटी का, तो जो चैट जीपीटी है वो आज के टाइम पे हम सबके पास अवेलेबल है, हम उससे पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर हम निकाल सकते हैं। और जो प्रोक्रास्टिनेशन का पॉइंट है, अभी वो डिफर करता है, वो अपना वेरी करता है इंसान से इंसान पे। अभी अगर मेरा माइंडसेट अच्छा है, मेरे वैल्यूज अच्छे हैं, तो मैं प्रोक्रास्टिनेट नहीं करूंगा, क्योंकि वो इंडिविजुअली बेस है कि कोई किसी का बिहेवियर कैसा है,
किसी का रिस्पॉन्स कैसा है किसी चीज के लिए। अगर मेरे व्हाट्सएप मेरा अभी जूम मीटिंग चल रहा है और मुझे कोई व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया तो मैं उस पे अपना अभी उतना ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा अभी जूम मीटिंग चल रहा है, मुझे पहले वो मेरी प्रायोरिटी है। लेकिन कोई और होगा तो शायद वो जाके अपना चेक कर लिया, किसी दोस्त का मैसेज आया तो उसके, तो प्रोक्रास्टिनेशन वो इंडिविजुअली डिपेंड करता है। और जो सेकंड है जूम मीटिंग में पार्ट ना लेना, वो भी सेम चीज एक पर्टिकुलर इंसान पे वो डिपेंड करता है कि उसको पार्ट करना है ना करना है। तो हम, और हमारा पॉइंट है कि इंटरनेट हमें प्रोडक्टिव बनाता है कि नहीं बनाता है, तो वो उसकी मर्जी है कि उससे प्रोडक्टिव होना ही नहीं होना है। हमारा काम है कि हमें उसका इंटरनेट हमारे पास अवेलेबल है तो हमें उसका अच्छा यूज करना है। और जो सेकंड अगेंस्ट पॉइंट्स में आता है कि जैसे डिस्ट्रैक्शन, जो हमारे समीर भाई ने बोला था कि डिस्ट्रैक्शन में जो इंस्टाग्राम हो गया, वही सेम चीज, वो इंडिविजुअली हमें देखना चाहिए कि कौन सा इंसान कैसा है, क्योंकि वो उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। और जो सेकंड पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी, सेम चीज वो इंडिविजुअली डिपेंड करेगा। तो ये सब इंडिविजुअल के ऊपर है, उसको कैसा रहना है नहीं करना। और जो डेटा प्राइवेसी का पॉइंट है, आई थिंक ये इस डिबेट का पार्ट नहीं है, क्योंकि डेटा हमारा टॉपिक है कि इंटरनेट हमें प्रोडक्टिव बनाता है कि नहीं बनाता है। तो अगेंस्ट में हमें शायद इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी इंटरनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी इस डिबेट का पार्ट नहीं है। सो आई थिंक यस, दैट्स फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। So thank you so much, Harsh Kumar Gupta. I think you mentioned so many points about it, और आपने जो बोला वो बहुत ही क्लियर था हमारे लिए। आई थिंक मैं वैसे तो बोलना चाहूंगी, and very clear and spoke really well also. So according to you, whatever against had said, वो individual इस पे होता था कि individual अपने ऊपर होता है, the way you are handling internet, the way you are using it, it depends on you. And I'm happy that you made notes also for this debate. Yes, so it shows that you were very interested in this topic as well. So you spoke mainly that you can use internet for networking. Like LinkedIn is a very famous platform, very famous app where you, if you want to, you know, become employed, if you want to know more about your seniors, you can go on LinkedIn. Something which you, if you want to go ahead in your job prospects also, it's very useful. Even I have seen. And then you said that remote working is a big trend. If you can't travel every day, remote working, it makes the job easier. And you also, many offices have shifted, mostly IT has shifted to having like remote working. Yeah. Yes. So now moving on to internet part. You said that internet, you don't have to go to the theater. Even on OTT platforms, you can watch anything you want. So that is a plus, you said, for internet. From the against, I'd like to know how it may not be a plus, like only if you want against topics. But yes, it is. Saving our it's free. I think mostly so many movies are free right now, so that is a plus for sure. And then digital marketing, that is a really innovative thing you said, because digital marketing, it was not there before, or now it is so much important for any brand, for any organization to market their products online. Social media on Instagram, they make posts, they make stories. So digital marketing is something which you can learn about. I think it's very interesting. And like also you can do online courses also, which is something which is not there. Like at your home, you can watch lectures on your favorite interested topic. So I think that is a plus as well. And yeah, so that is all about your everything you said about it.
Yeah. Yeah, Ankit, now you will have to go against anyway, so you can share your points. Yeah. So thank you for for giving me opportunity. तो मैं अभी बोलना चाहूंगा कि वैसे तो इन इन फेवर में जिसने भी बोला है बहुत ही अच्छा बोला है, मतलब हर एक पॉइंट वैलिड था। बट मैं एक चीज और इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। अब जैसे जिसने भी बोला उसमें सबसे मेन पॉइंट था सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब एक पर्सन कितना डिसिप्लिन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो अब जैसे क्या होता है कि कुछ भी हम ना किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि वो प्रोडक्टिव है या नहीं है, तो वो हम मेजोरिटी के बेसिस पे मतलब लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि मतलब वो जो भी मेजोरिटी है वो किस फेवर में है। तो अब जैसे उन्होंने बताया कि सेल्फ डिसिप्लिन अगर कोई है तो उसका डिस वो उसका मिसयूज नहीं करेगा इंटरनेट का। तो बट मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि कितने परसेंट लोग सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। ये हम सब जानते हैं कि मुश्किल से 5% लोग, मतलब मैंने 5% बहुत ही ज्यादा बोला है, 5% भी लोग सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते। वो किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। अब जैसे अगर व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आई तो देयर मे बी चांसेस कि 95% लोग या 90% लोग वो उसको देखेंगे ही देखेंगे, वो अपने काम को बीच में छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। अब जो वो 10% लोग हैं उनके लिए तो ये उनके लिए इस चीज का कोई मतलब नहीं है, मतलब वो इसको छोड़ देंगे, बट बाकी 90% लोग पक्का चेक करेंगे। तो सेल्फ डिसिप्लिन ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बट मेजोरिटी लोग इसको ऑप्ट नहीं कर पाते, मतलब मेजोरिटी लोग सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड नहीं कर पाते। और दूसरी बात, सेल्फ डिसिप्लिन जो बिल्ड होता है वो बचपन से ही बिल्ड होता है। बट आजकल लोगों को अ, अ, वो सॉरी आजकल बच्चों को मतलब चाइल्डहुड से ही फोन दे दिया जाता है, मतलब जब वो एज ए बच्चे होते हैं बिल्कुल बिल्कुल उनको तब से ही इंटरनेट का एक्सेस मिल जाता है। तो वहां से ही मतलब वो सेल्फ डिसिप्लिन को अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाते। सेल्फ सेल्फ डिसिप्लिन हमको कहाँ से आता है? हमको आता है खेलने से, बाहर जाने से, एक काम को बार बार करने से। बट ड्यू टू इंटरनेट हम सेल्फ डिसिप्लिन भी क्रिएट नहीं कर पाते। अब जैसे मैं अपना खुद का एग्जाम्पल ही देता हूँ। अभी मेरे एग्जाम थे, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं 1 वीक, मतलब मैंने स्टार्ट किया था कि 1 वीक से मैं शुरू करता हूँ कि 1 वीक में फोन का यूज नहीं करूंगा, मतलब इंटरनेट इंस्टा ये सब मैं यूज नहीं करूंगा। बट मैं 2 दिन तक ही रह पाया, मतलब 2 दिन के बाद मैंने एक्सेस किया ही। और मेरे को ये लगता है कि मेरी विल पावर कुछ हद तक स्ट्रांग है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि सेल्फ डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा पॉइंट है, बट वो बहुत ही कम लोगों में होता है और मेजोरिटी लोग इससे डिस्ट्रैक्ट होते ही होते हैं। और ये हमको लेजी बनाता है, जिसकी वजह से हम बहुत ही ज्यादा इसको यूज करते हैं और ये बहुत ही एडिक्टिव भी होता है। अब जैसे आपने बताया कि नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम ये सब अवेलेबल है, तो हम इन पे कोई भी मूवीज देख सकते हैं। बट इन पे क्या होता है कि जैसे हमने एक मूवी देखी तो जो इनका एल्गोरिदम है वो आपको बोलेगा कि इसके जैसे 10 मूवीज और है, तो आप वो भी देखो, तो आप उसमें से एक को चूज करोगे। तो कहीं ना कहीं आप प्रोकास्टिनेशन को और भी ज्यादा मतलब बढ़ा रहे हो। तो मेरा मानना ये है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, मेजोरिटी लोगों के लिए वो डिस्ट्रैक्शन है। तो या थैंक यू। Yeah, thank you, Ankit. So, in rebuttal में, like you did say, productivity decrease ज़्यादा हो रही है because of internet. Like people have no self discipline. When it comes to like notifications and games, they have no self discipline. Mostly because I think the reason for this is attention span is reduced a lot. You can't focus on a
lecture, for example, for even half an hour, because sometimes you may have your phone with you and you don't have that sort of attention span, focus nahi hai zyada on everything. And internet, I think mostly social media is becoming like an addiction for people. I have experienced this for myself, and even other people may have experienced it. Like, you can't say no. Like, internet has many advantages for sure. It is the thing at this point, but uske piche at the end of it, there are so many things which are not haywire. That like addiction part, where you can't stop using your phone, you can't stop using certain apps. So that is something which we should work on, I think, which we can work on. It's not like we can't work on that thing. Okay, so thank you so much, Ankit. Yeah, so now at the end we have for team VIP Rajat Dhakar, who would like to speak for. He's been waiting since almost an hour now. So yeah, you can go ahead. तो सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी ने काफी अच्छे पॉइंट्स बोले और अपने काफी अच्छे सुझाव रखे। तो मेरा नाम रजत धाकड़ है और आज मैं अपने जो वीक का जो रोल है वो अदा करना चाहूंगा। और पहले जो मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा जो सभी के साथ इंटरेस्टिंग होंगे। देखो देखो ये इंटरनेट का जमाना आ गया, क्रांति की तरह पूरी दुनिया में छा गया। यह हंसता भी बहुत है, खिलाता भी बहुत है, कैसे किसी को तो रुलाता भी बहुत है। यह उपयोगी बहुत है, इससे दिल लगी भी बहुत है। और ये बच्चों के मन को आया ये है। देखो देखो ये इंटरनेट का जमाना आ गया, ये क्रांति की तरह पूरी दुनिया पर छा गया। तो ये एक्चुअली मैंने लिखा था, बट अभी थोड़ा सा वो नहीं आ पाया था। तो जैसे कि मैंने अभी तक जो डिबेट सुने या बाकी मेंबर्स का सुना, तो मैं सभी पॉइंट्स पर मैं कुछ अपनी राय देना चाहूंगा, वो बाद में दूंगा। पर मेरे क्या व्यू हैं मैं बोल देता हूँ। जैसे कि हर चीज के दो पहलू होते हैं एक सिक्के के, उसी प्रकार इंटरनेट की दो पहलू हैं, एक होता है अच्छाई और एक होता है कौन बुराई। यदि हम अच्छे हैं, जेन्युइन हैं, यदि सपोज करो, यदि हमारे पास यदि आज रुपए नहीं है और यदि हम आज कुछ अच्छा करना चाहते हैं और हम पढ़ना चाहते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो काफी इजी फीस पर हो रही हैं। तो अपन ट्राई करेंगे कि हम कैसे भी करके अपन उसको पाएं। यदि हमारे पास एक क्लियर गोल है, बड़ा गोल है, और यदि हम अपने आप को पनिशमेंट करने की हिम्मत रखते हैं, तो ये जो ऑल ऑफ दी जो ये मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, ये वाली बात तो रहेगी नहीं। जैसे कि पहले भी जब ऑफलाइन क्लासेज होती थी उनमें 5 से 10% ही अच्छे होते थे, बाकी की जो मेजोरिटी स्टूडेंट होते थे वो अच्छे नहीं होते थे। तो तब वे कुछ और बहाना डालते थे। तब ऑनलाइन एजुकेशन नहीं था, तब वो और बहाना डालते थे, यार मेरा तो मन ही नहीं लगता है, यार उस टीचर ने तो बेकार पढ़ाया है, और मैं तो 5 दिन तक तो मैं तो आया ही नहीं था, स्कूल नहीं आया था। तो जब जो चीज नहीं थी तब उस टाइम पर अलग थे। आज ऑनलाइन एजुकेशन आ गई तो आज अलग तरह के बहाने हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक चीज बेकार चीज है। और इसके बाद में मैं बोलना चाहूँ तो यदि हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे, हमारे पास अच्छे फ्रेंड्स होंगे, अच्छे एक्सपीरियंस लोग होंगे हमारे आसपास सराउंडेड, तो हम काफी एनर्जाइज रहेंगे और हम काफी अपने गोल की तरफ अचीव की ओर रुख करेंगे। और हमारे पास यदि सराउंडेड में आसपास अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, अच्छा माहौल ही नहीं है, अच्छे फ्रेंड्स ही नहीं है, तो अपन कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसते हैं। और आजकल मैं फ्रॉड की बात करूं तो फ्रॉड पहले भी बहुत होते थे। पहले ऑफलाइन था तो चोर या कोई और दूसरे लोग हमारे साथ फ्रॉड करते थे। आज ऑनलाइन चीज आ गई है तो आज ऑनलाइन फ्रॉड होने लग गए हैं, जैसे साइबर क्राइम या बाकी बाकी जगह। तो पहले भी जब हमें अपने सामान को या अपने को सिक्योर रखना था, हमें ध्यान से रखना पड़ता था। तो आज भी जब हम उनको यूज ले रहे हैं
तो हम ऑफिशियली तौर पर इनको जाएं और इनको हम जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है हम उसी का ही यूज लें और थोड़ा सावधानी रखें। तो इससे एक पॉइंट ये होना चाहिए, एक बार होता है कि काफी बार अपन ऑनलाइन कोई स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या कोई यूट्यूब पर हमने देखा, तो वहां पर अपन 5 सेकंड रूल का यूज कर सकते हैं। मैं 5 सेकंड के अंदर मैंने जो चीज सोचा है मैं उसको देखूंगा, यदि 5 सेकंड के अंदर तो मैं उसको छोड़ दूंगा वहीं पर। तो इससे हम डिसिप्लिन रह सकते हैं। और जो सेकंड बात कही कि जूम मीटिंग में लोग अंदर बाहर आ जाते हैं, तो पहले भी जब ऑफलाइन क्लासेज होती थी तो कोई लोग भाग जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो फिर टीचर क्या करता था, अब तुम बाहर ही रहो, तुम लेट आए हो, तुम भाग रहे हो, तुम बीच में इंटरप्ट कर रहे हो। आप जी जूम मीटिंग में ऐसे ही होता है, जब सचिन सर कोई महत्वपूर्ण कोई वार्तालाप हो रही होती तो जो भी पर्सन 10 मिनट के बाद आता है उसको बैन कर दिया जाता है कि आप अंदर नहीं आ सकते। तो हम इसका भी यूज ले सकते हैं वहाँ पर। और इस कारण अपन के पास इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया है, तो वही है कि हमारे पास एक अच्छा गोल होगा, ब्रॉड गोल होगा कि हमें हर समय वही दिखाई दे रहा है, तो हम चीजों को नहीं देख पाएंगे। और एक अच्छा एनवायरनमेंट, इसमें एक अच्छा वातावरण जो होता है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि वातावरण में है तो हम देखेंगे कि यार साइड वाले क्या कर रहे हैं, साइड वाले अच्छा कर रहे हैं तो अपनी सोचेंगे चलो अपन भी अच्छा ही करते हैं। तो ये एक चीज है। और फिजिकली एक्टिविटी की हम देखें, सोशल मीडिया के कारण जो फिजिकली एक्टिविटी अपन नहीं हो पा रही है, तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि अपन अच्छे एनवायरनमेंट रहेंगे, जो फिजिकली रोज जाते हैं अपना कुछ वर्कआउट करते हैं, उनको अपन फ्रेंड बनाए या उनसे बातें करते रहें, तो अपन लगेगा कि अपन को भी जाना चाहिए कुछ देर के लिए, और तभी अपन का माइंड एक अच्छे ढंग से वो मतलब माइंड एक्टिवेट होता है। तो यदि हम बात करें जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन हमें नहीं आ पाता है, सपोज करो मेरे को एक टारगेट को पूरा करना है और मेरे से काफी दिन से मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, तो हम सपोज कर लें कि आज मैं जब तक खाना नहीं खाऊंगा या जब तक मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, यदि हम एक दिन भी इसको ट्राई करें ना, वो टारगेट भी हो जाएगा कंप्लीट, और आपको कुछ ज्यादा भी नहीं हो कुछ हानि। हो सकता है आपको थोड़ा सा सहन शक्ति बढ़ जाए, बट आप उस काम को कंप्लीट हो जाएगा वो जो आपने सोचा है टारगेट। तो जैसे कि जो इंटरनेट जो है आज काफी लोगों को ऐसा नहीं अभिशाप है, आज काफी लोगों को रोजगार दे रहा है। जैसे कि हमारे बीच में जो फेमस हुई वो बाबा का ढाबा, और जो बचपन का प्यार जो सॉन्ग था वो भी काफी फेमस हुआ था। आज हमारे पास अच्छे टीचर हैं जैसे कि विकास दिव्य कीर्ति सर, अवध ओझा सर, खान सर, ये इतने अच्छे टीचर हैं कि यदि हम उनको ओझा भी करें, देख भी लें ऑनलाइन, तो इतनी इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं इससे। यहाँ पे हमें अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखने को मिलती है, हमें क्या करना चाहिए, इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। और आज जो एग्जाम्पल भी है, आज जो बंदे हैं वाकई में कुछ अचीवमेंट चाहते हैं तो वो ऑनलाइन भी ला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिव्या तलवर, वो हरियाणा की हैं और 2022 के अटेम्प्ट में वो इस साल आईएएस का उनका चयन हुआ है। तो उनके बैकग्राउंड में था ही नहीं कुछ, उनका एक छोटा सा घर था, बहुत ज्यादा उस घर की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। बट एक होता है ना कि यार अपन को वो चीज अचीव करनी है, और फिर इसके लिए मतलब न्यूनतम रिक्वायरमेंट क्या होंगी, तो हम उन चीज को उसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आग जो है, आग हाथ जलाने का काम भी करती है, उसी प्रकार आग जो है वो खाना पकाने का काम भी करती है। उसी प्रकार इंटरनेट है, यदि हम इसको जेन्यून है वाइडली यूज करेंगे तो ये हमें बहुत प्रोडक्टिव बना देगा और हमें काफी अचीवमेंट और हमारे इम्प्रूवमेंट काफी हेल्प करेगा। और यदि हम केवल इसकी अच्छाइयों को देखेंगे तो हम अच्छाइयों पर फोकस करेंगे, और यदि हम इनकी बुराइयों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें वो बुराइयां अपन देख सकते हैं। जैसे आधा गिलास पानी है और आधा गिलास पानी अपन सोचते हैं कि आधा गिलास खाली है, पहले अपन ये सामान्य तो होता होगा कि हम सोचते हैं कि यार अपन में 2 भाई बहन है तो उसको आधा आधा कर दिया, यार मेरे पास तो आधा ही पिलाया आपने, और उसके लिए तो आपने वो दे दिया, पूरा वो दे दिया गिलास। तो ये जब भी सोचते तो यार आधा तो आया ना, आधा तो है भी हमारे पास गिलास। तो एक पॉजिटिव चीजें हैं जहाँ पर अपन नजर रख सकते हैं। तो आई थिंक तो मैं एक एक 2 पॉइंट बोलना चाहूंगा कि पहले भी जो
वो सारे ऊपर हमारे ऊपर होता है। जो पहले जो स्टूडेंट थे तो उनमें कुछ 5 से 10% जुनून थे जो अच्छा करते थे। आज भी ऑनलाइन के जमाने में भी और डेडिकेट जो पर्सन है वो ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा जुनून है और वो लगता है कि नहीं मेरे को तो यही करना है, फिक्स माइंडसेट है, तो वो अचीव कर देते हैं। जब अपने आप को हम आरामदायक माहौल में ढालते हैं या हम लेजी हो जाते हैं, जब हमारे माइंड में गोल नहीं होता, तो अब हम लेजीनेस और इन सारी चीजों के शिकार हुए होते हैं। हमें मालूम है कि मेरे को अपनी स्टैंडिंग सही करनी है, मेरे को एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में इतने सारे लोग होते हैं, 120 लोग, उसके बाद कितने ही लोग अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख पाते हैं, नहीं रख पाते, छोड़ देते हैं। बट कुछ लोग होते हैं कि सोच के जाते हैं कि मेरे को नेशनल कांग्रेस क्यों जाना है, सीख के आना है, उसकी फिर अपने टाउन में अपने वहां पर आकर प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। और मेरे को स्टेमिनिंग को जब मैनेज हो सकती है तो कोई भी कीमत पर, चाहे 1 साल लग, चाहे अपन को इसको सही करना ही है, तो अपन उसकी ट्राई करते हैं। तो इसमें एक अहम रोल अदा करते हैं मन। यदि हमारा मन ताकतवर है तो हम सारी चीजों को, सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो मन को ताकतवर बनाने के लिए हम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और अच्छे जो विपासना सर बोलते हैं उसको सीख सकते हैं। और जब तक हमारा मन ताकतवर नहीं है तो हम आज भी, पहले ही फेल थे, आज भी हम अच्छा नहीं करेंगे और आगे टाइम में भी अच्छा नहीं करेंगे। तो यदि हमारे पास एक अच्छा विजन है कि हमें उसको अचीव करना है, और हम अपने, यदि हमसे कोई गलती हो जाती है, एक बार हो जाए ठीक है, वापस से हो रही है, तो यदि हम अपने आप को पनिशमेंट देने की क्षमता रखते हैं तो हम काफी कुछ जो मतलब अचीव कर सकते हैं। तो ओवरऑल यही मेरे पॉइंट थे। तो मैं लास्ट में मैं एक लाइन ही में बोलना चाहूंगा कि जैसे जो काफी बार क्या होता है कि ऑनलाइन के जरिए काफी लोगों ने बिजनेस भी काफी डेवलप हुआ है, जैसे अनअकैडमी। अनअकैडमी ने क्या किया है कि पहले ऑनलाइन के जरिए आज वो इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है, वो उतने रुपए कमा रही है, पर उसी के बिहाफ में देखे जो उसको कंपटीशन मिली, PW लो कॉस्ट है, सारी कुछ लो है, फिर वो 8,000 करोड़ उसकी जो संपत्ति की वेल्थ है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, ये एक पॉइंट्स हैं ऑनलाइन पे। काफी सारे इम्प्रूवमेंट है, काफी सारे यूट्यूब के चैनल भी हैं जो काफी जल्द ग्रो कर रहे हैं। बट ओवरऑल ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। एक दो चीजें हेल्प कर सकती हैं, एक तो अच्छे एनवायरनमेंट रखें, अच्छे एक्सपीरियंस लोग रखें, अच्छे दोस्त रखें, और हम जो गोल है वो उसको सेट करें, टाइम दें, लिखें, फिर हम धीरे धीरे उस पर ग्रेजुअली बातें करते रहें अच्छे लोगों से, फिर हम पे अपनी ग्रेजुअली अपने आप में इम्प्रूवमेंट का कर पाएंगे। तो ये चीजें थी जो मैं शेयर करना चाहता था। सो थैंक यू। आई थिंक मैंने जो मेरे अंगेस्ट के फोन पे मैंने सभी को वो कर दिया क्लियर। 5 सेकंड रूल का फॉलो अपन कर सकते हैं, और ये मैंने सारी चीजें बोल दी। सो थैंक यू, धन्यवाद। Thank you so much, Rajat. You spoke very well. तो आई एम हैप्पी कि आप सेकंड बार आए इवेंट में, यूट्यूब पार्टिसिपेशन सेकंड टाइम, एंड ये बार आप विप के तौर पे आए। सो आपने बहुत अच्छा बोले, बहुत सारे चीजें बोले आपने। मोस्टली आपने लाइक एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस किया कि हमारे आसपास के लोग जो हमें सिखाएंगे या जो होंगे उस हिसाब से वी विल एक्ट। एंड आपने बोला कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत बोला कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है, और एक्चुअली ये पॉइंट बहुत अलग हो जाता है कि प्रोडक्टिविटी हम कैसे हमारे ऊपर लेके आ सकते हैं, हम अंदर से कैसे प्रोडक्टिविटी लेके आ सकते हैं। तो वही चीज हो जाती है, लाइक यू सेड कि हम इफ वी वांट टू अचीव समथिंग, हमें अगर कुछ चीज लेनी होगी तो हम ये सब इंटरनेट पे जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनके ऊपर ध्यान देंगे नहीं ज्यादा। तो वो सब अपने ऊपर होता है इंडिविजुअली, ये तो हमने अभी बोल ही दिया है बहुत बार। and yeah, like online जो टीचिंग्स होती है, like मैंने भी यूज किया था अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म। देर आर मेनी टीचर्स जो अगर मैं जाऊं तो वो लोग बहुत फीस लेंगे शायद मुझसे, बट अगर मैं उनसे ऑनलाइन सीख रही हूँ तो इट्स वेरी चीपर फॉर मी।
तो वो अच्छा हो जाता है, लाइक अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं वहाँ पे एंट्रेंसेस के लिए। आई थिंक हम सभी यहाँ पे स्टूडेंट्स ही है, तो हम यूज कर सकते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स और ऐसी चीजें जो अफोर्डेबल होंगी, एंड उसी वक्त हमारे ऊपर है कि हम उनका ले पा रहे कि नहीं। हमारा नॉलेज इफ वी अटेंड एवरी डे, तो वो सब हमारे ऊपर होता है ऑब्वियसली। सो थैंक यू सो मच रजत। या Thank so you. in the end we have our against team with Sameep Shinde on the spot. Yes, you can go ahead. Yes, thanks for giving me another opportunity to speak. And talking about against the topic that how internet decrease our productivity is that one of the participants said that entertainment. Yes, entertainment is necessary, but it should be in a limited way. Once it becomes uh, like आदत ही बन जाती है ऐसे कि आने का फिर देखने का। मेरे बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ। एक दो कहते हैं अरे मैंने तो एक वेब सीरीज बिंज वॉच कर ली। अरे क्या कर लिया ऐसा? बिंज वॉच कर ली। तो ऐसे बहुत से मतलब जो लोग कुछ काम करने के लिए कैपेबल है, पर ड्यू टू द इंटरनेट, ड्यू टू दिस increased entertainment, their productivity decreases a lot. uh, and uh, in our age, like we are 18 years, we are most of the teenagers, the teenage, we have a very high energy that मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा। बहुत ऐसे ऐसे मैं ये भी कर लूंगा। पर इंटरनेट के कारण वो प्रोडक्टिविटी काफी हद से, बहुत से लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, वो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द इंटरनेट, वेरियस बिकॉज ऑफ मेनी डिस्ट्रैक्शंस, the different web series, uh, and gaming and etc. So that's so this way, if every student um maintain his or her use of internet and use it in a particular way, and like properly giving it time for internet and for other things that are very important, that make you a better peer person for future, then in that way it can be very useful. But its excessive use will definitely decrease our productivity and will be harmful, will be very and make us to procrastinate that why we wasted our time in internet. So that's the so I would like to conclude it that internet is a very much useful nowadays, but the only thing is that we should make its use very properly and in a limited way, and making us more productive. Thank you. Thank That's you. Yeah, thank you so much, Sameep, for ending against team's turn, I can say. Okay. So I'd like to ask anybody from the audience who has recently joined, or even if there's anybody, if you want to say anything. Yeah, Ankit, you can go ahead. Yeah, so thank you for giving me another opportunity. तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे हम खुद से ही देखें, मतलब हम खुद का ही एग्जाम्पल लें, तो हम डेली बेस पे 1 आवर तो फोन यूज करते ही हैं। मतलब हम मे बी 1 आवर से ज्यादा ही करते हो, 1 आवर से ज्यादा ही होगा, बट एटलीस्ट 1 आवर तो करते ही हैं। अब आप एक बार जाके देखो कि उसमें 1 आवर में आपने कितना प्रोडक्टिव उसको यूज किया और कितना आपने अनप्रोडक्टिव यूज किया। देर आर चांसेस, देर आर 99% चांसेस कि आपने 1 आवर में से 50 मिनट्स, मे बी 55 मिनट्स उसका अनप्रोडक्टिव वे में ही यूज किया होगा, आपने इंटरनेट का, आपने फोन का। और ये फैक्ट है, अब इस चीज को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो
जिसकी वजह से क्या होता है, अब अगर मैंने 5 मिनट मैंने इंस्टाग्राम चलाया, तो जैसे आपको भी पता है कि इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है, उस पे सब अपनी बेस्ट वीडियो, बेस्ट बेस्ट अपनी पिक्चर्स वही डालते हैं, जिससे हमको इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है। जैसे हमारे मन में आता है कि हाँ यार, हम ऐसे क्यों नहीं है। अब जैसे अगर कोई घूमने गया है तो हमारे मन में आता है कि हम क्यों नहीं जा रहे, जिससे हमको आइसोलेटेड भी फील होता है। बहुत बार हमको लगता है कि हाँ यार, हम नहीं हम नहीं कहीं पे भी जा रहे। तो ये बहुत बार क्या होता है, मेरे को लगता है कि इंटरनेट अच्छा यूज है, बट अगर आप अब जैसे मान के चलो, मैंने 2 घंटे में अभी पढ़ा हूँ, तो अभी मेरे को ब्रेक लेना है। अब एक तो मैं ब्रेक ले मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, अभी अभी आ रही है। ओके 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 ओके। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर मैंने अभी 2 घंटे पढ़ा और उसके बाद मेरे को 5 मिनट अपना माइंड रिफ्रेश करना है, तो मैं इंटरनेट पे जाने की बजाय अगर मैं बाहर जाता हूँ, बाहर में किसी से मिलता हूँ, बाहर में किसी से बात करता हूँ, तो वो मेरे माइंड के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, वो मेरे को ज्यादा फ्रेश बनाएगा एज कम्पेयर टू मैं अगर यूट्यूब पे जाके कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो देख रहा हूँ। वो मेरे माइंड में कुछ ना कुछ क्रिएट ही करेगा। और अगर मैंने 5 मिनट की वीडियो के लिए प्लान बनाया, तो देयर आर हायर चांसेस कि मैं दूसरी वीडियो भी देखूंगा, क्योंकि वहां पे उसका एल्गोरिदम भी काम करता है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम जो ये बनाए गए हैं ना, वो इस एआई के बेस पे बनाए गए हैं कि वो आपको ऐसी चीजें ही दिखाएंगे जो आपके लिए हार्मफुल है। और जिसकी वजह से क्या होगा, अगर मैंने 10 मिनट भी फोन चलाया, उसकी वजह से मेरी एनर्जी सारी उस पर चली जाएगी। अब जैसे क्या होता है, डोपामाइन होता है, जैसे सभी को पता है कि डोपामाइन होता है हमारी बॉडी में। ओके ओके ओके। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि डोपामाइन होता है, डोपामाइन की वजह से ही हम कुछ भी काम कर पाते हैं। और जैसे ही हमने फोन चलाया, तो वो डोपामाइन बहुत जल्दी रिलीज होता है, जिसकी वजह से हम अगर खुद से भी चाहे तो भी हम मतलब कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारी एनर्जी इतनी बचेगी ही नहीं, हमारा मोटिवेशन भी इतना नहीं बचेगा। तो इंटरनेट बेसिकली बनाया तो प्रोडक्टिविटी के लिए ही गया था, कि हम कुछ भी काम करें तो वो अच्छे से हो और उसके बेनिफिट मिले। और वो कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि बहुत से लोग उसको ठीक से यूज करते भी हैं, बट वो बहुत ही कम है। बहुत बहुत ज्यादा बंदों के लिए वो इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है, वो उसको आइसोलेशन में फील करवाता है कि तू भाई अलग है। मतलब बहुत बहुत से पर्सन्स को लोनलीनेस भी फील होता है उसकी वजह से, और वो लेजी भी हो जाते हैं। और एट द एंड, अब जैसे आपने देखा होगा, अगर आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखोगे कि हम अपने दिन को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, तो सभी के सभी पता है क्या बोलते हैं कि आपको 1 आवर सोने से पहले फोन को छोड़ना है, और जब आप उठोगे तो आपको 1 आवर फोन को यूज नहीं करना है। तो अगर हमको इंटरनेट हमको प्रोडक्टिव बनाता है, तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि आपको 1 आवर मतलब पहले फोन नहीं छूना है, 1 आवर उठने के बाद फोन नहीं छूना है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो हमको कहीं ना कहीं गलत वे में डिस्ट्रैक्ट करता है। तो बेसिकली क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि इन अ मेजर वे, मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे वो हमको डिस्ट्रैक्ट ही करता है। उसका एल्गोरिदम ही ऐसा है कि वो हमको डिस्ट्रैक्ट करे। अब हम चाहे कितना भी वो हो जाए, बट वो कहीं ना कहीं हमको डिस्ट्रैक्ट करता ही है, इन अ मेजर वे। तो या मैं इसको कंक्लूड यही करना चाहूंगा कि हम हमारे ऊपर होता है इंटरनेट का यूज करना, नो डाउट, बट उसको बनाया ही इसी तरीके से गया है कि वो आपके डिसिप्लिन को तोड़े, कि वो आपको बार बार में चैलेंज करे। और ना कहीं ना कहीं अगर आपको एंटरटेन होना है, या आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि आप रिफ्रेश हो, तो आपको बाहर जाके कुछ करना इज द बेटर ऑप्शन। आप
आप अगर फोन पे स्क्रॉलिंग करोगे या कुछ भी करोगे, उसकी वजह से आप लास्ट में जाके लेजी ही बन जाओगे या आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, और ये चीज मैंने खुद भी फील की है। अ, तो या थैंक यू, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you so much, Ankit. So yes, I'd like anybody from the audience, Shubham, Kumar, or Akshay, if you want, you can share your views now. उसके बाद we'll move on with Harsh and Madhu. Anybody from the audience? हाँ बोलिए शुभम। हाँ हाँ, तो ये मैं सुन रहा था, मतलब मैं तो पूरा पूरा वीडियो तो मैं तो शुरू से इसमें था नहीं, मैं सिर्फ लास्ट में आया और दो लोगों की बातें सुना। काफ़ी काफ़ी अच्छा ये डिबेटिंग टॉपिक है। इस पे तो मतलब काफ़ी काफ़ी मतलब पूरे पूरे दिन डिबेट किया जा सकता है। फिर भी इसमें इसमें मतलब मैं इसमें इक्वल रहना चाहूँगा। मतलब ये तो ये तो वैसे इंटरनेट तो हमारे काम के लिए ही खब- बना था, लेकिन मैं अंकित के भी बातों से एक मतलब मतलब ये अगर अभी के अगर टाइम में देखें तो ये तो इसका हम यूज़ ज़्यादा हो रहा है यूज़ के अपेक्षा। और और रजत ने भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे। मैं उसकी भी बातों से सहमत हूँ कि ये कि इंटरनेट से आजकल हम मतलब काफ़ी मीन्स कि हम कुछ भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं पल भर में। मतलब एक क्लिक में हम हम दुनिया के किसी भी कोने के बारे में खबर पता कर सकते हैं या फिर कुछ भी जानकारी जुटा सकते हैं। तो बस मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। मुझे इसके बारे में मैंने कोई तैयारी नहीं की है। बस थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच शुभम। ये भी हमारे ईसा में ही बहुत हेल्प करते हैं, इसीलिए बहुत अच्छा अच्छा बोला आपने कि ओके। सो हर्ष कुमार गुप्ता, यू कैन गो है। हाँ, सो जैसा कि अंकित भाई ने बोला है कि जो ऑनलाइन यूट्यूब पे जो लोग बोलते हैं कि हमें सोने से पहले एक घंटा पहले फोन साइड में रख देना चाहिए, तो वो इसलिए बोलते हैं, और ये उन लोगों के लिए जो जिनका सेल्फ कंट्रोल उनके ऊपर है नहीं। क्योंकि कैसा है, बहुत से लोग एडिक्ट होते हैं, और उनको और उनके जो पेरेंट्स है उनको भी उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं होने के वजह से वो लोग ओवर करते हैं। अभी जैसा जो स्टडीज है, लोग बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा ही पढ़ते हैं, और फिर उनको भी उससे प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए लोग बोलते हैं हर एक चीज बैलेंस में करनी चाहिए। तो वो लोगों की गलती है जो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का। तो इसीलिए लाइफ को बैलेंस रखो। जो लोग बैलेंस नहीं रखते उनको फिर प्रॉब्लम आती है। फिर इसके लिए अपना वीडियोस बनती है कि आप फोन को थोड़ा साइड में रखा करो, फिजिकल एक्टिविटीज ना किया करो, क्योंकि उनके पास बैलेंस नहीं है। और ऐसी कंट्रीज भी है कि जहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन भी है। अभी अगर जापान का एग्जांपल बहुत बेस्ट है, क्योंकि वहाँ तो वहाँ पे लोग टाइम के हिसाब से, मतलब वो लोग हमेशा पंचुअल रहते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन वहाँ भी है। तो जो सेल्फ डिसिप्लिन का पॉइंट है, तो वो उनके वैल्यूज पे मैटर करता है कि उनके वैल्यूज कैसे है। इंटरनेट एक अगर इंटरनेट को न्यूट्रली देखा जाए तो वो इंटरनेट है, अभी वो इस्तेमाल करने वाले के ऊपर है कि वो कैसा इस्तेमाल कर रहा है। वहाँ पे नेगेटिव लोग भी, जो लोग
उसका गलत इस्तेमाल करें, लेकिन एट द सेम टाइम अच्छे लोग भी है। इंटरनेट का इस्तेमाल इस हमारे इस ग्रो भी करते हैं, नासा करती है, हमारे बिजनेसेस में होता है। सेम टाइम उसको नेगेटिव यूज भी होता है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इंटरनेट हमें अनप्रोडक्टिव बनाता है। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम चीजों को कैसा लेते हैं। तो मेरा यही पॉइंट है कि इंटरनेट प्रोडक्टिव है, बस हमें लाइफ में बैलेंस लेके चलना होगा और इसका सही इस्तेमाल करना होगा। यस, so this is the point. Thank you. Thank you so much, Harsh. So, Madhav, you wanted to say anything? Okay. I want to say that Ankit sir, I want to say that Ankit sir speak very well. I am. I will. I will. I will. I will. I will definitely praise you. Um, but from point of view, of mine, I am not. But from point of view, point of view of mine, I am only. I am only agree with him to a some extent. I am not fully. I am not fully agreed. I am not fully agreed with him. Um. Uh. Because because it's because it's because it because it depends to person to person. It depends person to person. It depends to a nature of a person. How if the person want to if the person if the person if the person has a if the person has if the person has a self control and he was motivated to doing his right type and he was motivated to doing his task. Um. So he will so he, so he will definitely not use the so he will definitely not use the internet internet in a wrong way. Um. While the while the while the other hand, if if a person has a if a person who wants who wants fully who wants who don't want to work harder, who don't want to stay motivated, who don't want to focus on his work, who 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 only wants enjoyment, he will definitely use the he will definitely use the he will definitely use the internet to increase to increase his to increase his um to increase his personal to increase his self. Um, um, so, so, so at the end, I will so so at the end, I will say that the the potential of the potential of humans is endless. No one is no 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 one is no one is small or no one is bigger. O- Only one thing you have to do is to control your mind. Do you have to do meditation. You have to you have to engage in physical activity. By the by, um it will it will it will it will definitely help you to it will definitely it will definitely help you to increase your um self discipline. Yeah, thank you. Yeah, thank you, Madhav. Yeah, Manohar, you can go ahead. After that, we'll have a poll where you can choose which team do you think did well, for or against. Okay. Yes. Thank you. Give to speak again. So for that, Ankit Singlaji said earlier that the internet that it is a over information in the internet. So
my point is that it is from my point of view, according to me, it is not and it is not a disadvantage. According to me, it is a advantage because um, अगर कोई तालाब है वहां पर बहुत सारा पानी है लेकिन आपको सिर्फ नहाना है तो आप एक बाल्टी लेके जाइए और उसको भर के लाइए और नहा लीजिए। बाकी के पानी से आपको क्या मतलब? 5 उंगलियां सेम तो नहीं होती। एक छोटी, एक अंगूठे का साइज ज्यादा है, तो जिसको जितनी इंफॉर्मेशन और जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए वो वैसी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ले सकता है। और सही कीवर्ड अगर जो सपोर्टर ने बात की तो उससे क्या होगा? ऐसा नहीं है कि एक चीज के लिए एक ही इंफॉर्मेशन है और एक ही इंफॉर्मेशन से 5 उंगली, मतलब हर व्यक्ति को संतुष्टि मिल जाए, सेटिस्फेक्शन मिल जाए। हर इंसान का दिमाग जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है लेकिन आपको जो जिस इंफॉर्मेशन जो आपको सही लग रही है, जिससे आपको संतुष्टि मिल रही है, आप सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को देखिए। बाकी इंफॉर्मेशन पर अपना ध्यान मत मत ल ल लगाइए। उसके बाद एक और पॉइंट अंकित जी ने कहा था कि अ, जैसे आप स्टडी कर रहे हैं और आपको स्टडी करने का मन नहीं लग रहा है, 2-3 घंटे आपने किया, तो आप इंटरनेट यूज करने के बजाय आप बाहर जाइए, आप लोगों से बात कीजिए। तो ये कहाँ तक सच है कि आप उन लोगों की बातों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे? ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ नेगेटिव बात कर दें, उससे भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जैसा आप बोल रहे थे कि ये वही चीजें दिखाती हैं जिससे जो आप पर थोड़ा बेड इफेक्ट डालती है, तो ऐसा हर कंडीशन में सत्य नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, आप जो चाहें वो आप सुन सकते हैं और जिस समय अंतराल तक चाहें उस समय अंतराल तक सुन सकते हैं। और आप अगर किसी लोग के पास जाएंगे तो उन पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, वो जो कहेंगे वो आपको सुनना ही पड़ता है। री री regardless of what you want to actually listen, that is the thing you have to understand. You are also pick that artificial intelligence और YouTube, Instagram वही दिखाता है। तो जब भी आप YouTube, Instagram में जो 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 एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं वो आपका माइंडसेट रीड करके ही दिखाई जाती है। आप अगर शॉपिंग ऐप खोल के 2-3 दिन तक शॉपिंग ऐप खोल रहे हैं तो इंस्टाग्राम आपको वही दिखाएगा। तो इंस्टाग्राम आपका माइंड रीड कर रहा है, आप जो चाहेंगे। तो आप अगर अच्छा सुनना चाहेंगे, आप अगर मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना चाहेंगे तो वो चीज वही दिखाएगा जो आप चाहते हैं। तो अ, और सेल्फ डिसिप्लिन की बात भी की पार्टिसिपेंट ने, तो और वो जो 1 घंटे सुबह शाम वाली बात हो तो एडिक्टेड लोगों के लिए है। अगर आप दिन भर ही 6 घंटे तक अगर कोई वेब सीरीज देखते हैं, बिंज वॉच कर रहे हैं, तो फिर तो कोई भी 1 घंटा आपको उससे दूर रहने का ही कहेगा। और काम में बाधा उत्पन्न होती है, ये भी आपने शुरू में कहा था कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो स, जो सपोर्टर ने बात बताई वही है कि ये एक इंडिविजुअल चॉइस होती है। अगर अपनी मानसिक स्थिति अपने कंट्रोल में है और अपन चाहते हैं कि नहीं, मैं नहीं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा भले कुछ भी हो जाए, तो वो अपने आप डेवलप हो जाता है। और ये शुरुआत में मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप अपने माइंड को वैसे ही डेवलप कर लेंगे, आएगा कि आपको ये डिस्ट्रैक्शन जो है वो कुछ भी नहीं लगेंगे। आपको लगेगा कि आ, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं खुद को बेहतर बनाने के लिए। और तो फिर आप इन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएंगे और आप जिस टाइम जो कर रहे हैं उसी पर आपका फोकस
रहेगा। तो बातें तो और भी थी बहुत सारी बताने की, लेकिन एक फिक्स टाइम इंटरवल है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। Thank you, Manohar. So, अभी at this point, we'll do a poll. आपके स्क्रीन पे आएगा कि which team was more either for or against. So you have to choose. After that, we'll take up if anybody wants to speak. तो अभी poll आ गया होगा. You can choose. सब आंसर देंगे तो अच्छा होगा. सबने आंसर दिया है गेस. So against team has one higher vote than for team. I think everybody had answered the poll. So wait. Now you can see the results actually. Okay then, thank you so much for participating in the debate. If you have anything else to say, you may say, like there's no restrictions as such, because the topic ही ऐसा है कि you can speak more and more on it. So if you want, you can share, but the event has ended at this point. या तो मैं ये तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि वोट ना किसको ज्यादा मिली, मतलब अगेंस्ट को या इन फेवर ऑफ टॉपिक? आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा ना अभी. अगेंस्ट को एक वोट ज्यादा मिला है. 7 people ने वोट किया है. ओके तो ओके 3 votes are for 4 is for against. ओके. Okay then. So hello, मैम. Yes, तो yes. मैम मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा कि हमें जहाँ से जो चीज अच्छी मिले वो ले लो. ऑफलाइन से जो हमें रूट जड़े जो उनसे सीखे हैं वो वहां से ले लो. ऑनलाइन से जो अच्छा लगे वो ऑनलाइन से ले लो. और इस तरह से हम एक बेस्ट वे में अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे और एक अच्छे एनवायरनमेंट से सराउंडेड रहेंगे तो हम वाकई में आगे अच्छे जा पाएंगे. थैंक यू. Yes, yes. I think Manohar and Akshay wanted to say something. Acha, you spoke already, right? Yeah, Akshay, you wanted to say. गुड आफ्टरनून. एक्चुअली कुछ चीजें जो अभी मनोहर ठाकर ने बोली थी तो उससे मैं एग्री हूँ कि बाहर जाके अगर आप बात करोगे तो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव वे में ही बातें करें, बट उससे अगर उसके अलावा अगर हम अगर यूट्यूब पे कुछ अच्छी चीजें देख लेते हैं 5 मिनट तक या कोई म्यूजिक सुन लेते हैं तो उससे भी माइंड रिफ्रेश हो जाता है. और जैसा अंकित भाई ने कहा था कि ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है. हम क्या देखते हैं वो डिपेंड करता है. जैसे कि अगर हम शनिवार है या रविवार है, अगर हमारा माइंड बहुत डिसअपॉइंट है, हम बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं, अगर उस समय का हम एक अच्छी मूवी देख लेते हैं तो वापस एनर्जी से भर जाते हैं. जस्ट ये मेरे साथ कई बार हुआ है. और बात करें तो एक भाई ने मेडिटेशन की बात करी थी, तो वो भी एक अच्छी चीज है क्योंकि मेडिटेशन करने से हम खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं. और जब हम कुछ सोशल मीडिया पे ब्राउजिंग करते हैं जो वेस्ट होती है तो उससे हम थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हम अपने माइंड को तब देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो फिर उससे हम छुटकारा पा सकते हैं. वो जस्ट मेडिटेशन है.
तो जैसे कि इंटरनेट का तो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। मेरा तो काम ही ऑनलाइन का है। मेरा काम ही सेलिंग करना है ऑनलाइन। तो मैं तो दिन में कम से कम 12 से 13 घंटे नेट का यूज़ करता हूँ। उसमें पीसी भी हो गया और मोबाइल भी हो गया। तो वही है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, उस पर डिपेंड है बस। थैंक यू सो मच अक्षय, आप ऑडियंस में आए और आपने अपने व्यूज भी शेयर किए। और कोई ऑडियंस में से अगर आपको, सौरभ आप भी अभी भी आए शायद, आपको अगर कुछ भी बोलना होगा तो बोल सकते। हेलो, आप सभी लोग कैसे हो भाई लोग? आशा करता हूँ अच्छे होगे। मैं फर्स्ट टाइम ही टीसा की मीटिंग में ज्वाइन हुआ हूँ। इससे पहले मैं सचिन लर्नर सर को जानता था, लेकिन टाइम ना मिलने के कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पाता था। आज जैसे कि अभी मनोहर भाई ने, और शायद भाई का नाम क्या था भाई, अक्षय भाई ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन जैसे कि हमें जब डीमोटिवेशन फील होता है तो हम मोटिवेटेड वीडियो ना देखकर अपने आप को उस डिफिकल्ट सिचुएशन में डालें जहाँ पर हमें डर लगता है। वो चीज़ ज़्यादा बेटर होती है और हमें टेक्निक रूल पता होता है, तो उस तरीके से ही हम अपने आप को एक्सप्रेस करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि हम लोग जब किसी के सामने या किसी से भी इंटरेक्ट करते हैं तो अपने आप को पूरी तरीके से टेक्निक के साथ ही अप्लाई करने की कोशिश करें। ऐसा सचिन लर्नर सर ने भी बोला था। और एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी जैसे कि मैम ने बताया कि काफ़ी सारे लोग टीसा ग्रुप में ऐड होते हैं और प्रैक्टिस ग्रुप मेंबर से तो अच्छे तरीके से कर पाते हैं, लेकिन बाहर इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छे से करनी चाहिए और अपने आप को ऐसा सोचना चाहिए कि मतलब जैसे कि अंतिम दिन होता है ना, इंसान सोचता है कि लास्ट दिन, तो लास्ट दिन में हम अपने आप को काफ़ी हद तक बेटर कर पाते हैं। तो उसी तरीके से हमें मेहनत करनी चाहिए, तभी हम आगे निकल सकते हैं। और दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए और अपने ऊपर काम करना चाहिए। और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। ओके देन, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सौरभ, आपने अटेंड किया ये मीटिंग आज। एंड ऑल्सो आई लाइक टू थैंक एवरीबडी इन द मीटिंग। आई थिंक आपने बहुत एक्टिवली अपने टॉपिक के ऊपर बोला, बहुत सोच सोच के बोला, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज मिले हमें, जो मैंने भी नहीं सोचे थे वो भी मुझे पता चला इसके इसके मीटिंग के थ्रू। So thank you so much everyone, and happy Sunday to you all. So I'll end the recording over here.